پاکستان کے نوجوان کس صورتحال میں مبتلا ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کب سے کام کر رہے ہو یہاں پہ؟ I'm working here since 2 years. میں 2 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں ایز اے ویٹر. اچھا تو انگریزی وغیرہ تو ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. میں نمل یونیورسٹی سے بی بی اے کر چکا ہوں. نمل سے بی بی اے؟ جی الحمدللہ. اچھا جی. اور جب آپ بی بی اے کر رہے تھے تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ یہاں پہ کام کریں گے؟ سوچا تو نہیں تھا کہ میں ایز اے ویٹر یہاں پہ کام کروں گا, لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایز اے بے روزگاری ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بے روزگاری کی ایک مثال دیتا ہوں. جو میں گلگت بلتستان سے بلانگ کرتا ہوں, ضلع گانچے سے. ابھی جب میں ریسنٹلی گئے تھے گرمیوں میں گاؤں نا, تو وہاں بے روزگاری کی بات کریں تو وہاں ایک جاب ویکینسی آئے تھے اراؤنڈ صرف ضلع گانچے سے. میں ضلع گانچے کے برا بالے سے بلانگ کرتا ہوں. تو ہمارے برا بالا میں ایک گورنمنٹ جاب کی بات کریں تو وہاں پہ ایک فش فارم ہے, وہاں پہ ایک ویکینسی آئے تھے. تو اراؤنڈ صرف ضلع گانچے سے آپ کو بولیں تو 10,000 کے قریب لوگ ادھر اپلائی کرنے کے لیے آئے تھے. اس میں سے تقریباً 250 پلس گریجویٹ اور ماسٹر پاس وہ بھی اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آئے تھے. اب وہ جاب کے جو ویکینسی کا جو عہدہ کیا تھا, وہ وہاں پہ جو فشریز فارم ہے اس کے گریڈ 1 تھے, وہاں کے چوکیدار تھا. بے روزگاری اتنی پھیل گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب جب ہمارے بچے جو نیو جنریشن آتے ہیں وہ پوچھیں گے یار بابا میں نے پڑھ کے کیا بنوں گا, ہم انہیں کیا کہیں کہ بیٹا آپ نے ایک چوکیدار کی کام کرنا ہے, جب آپ ماسٹر کریں گے آپ نے ویٹر کرنا ہے ریسٹورینٹ میں آ کے. بڑے انسان بننے کے لیے میری وجہ سے کسی کو روزگار ملے, میں نے اس لیے پڑھا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک کسٹمر نے مجھ سے پوچھا میں نے کیا میں نے کہا بی بی اے کر چکا ہوں, آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو. وہ کہہ رہے تھے آپ اپنا کوئی سیٹ اپ کیوں نہیں کھولتے. میں نے کہا بھائی آپ کو کہنا آسان پڑتے ہیں, سیٹ اپ کھولنے کے لیے منیمم ہمیں کچھ تو ہمارے پاس اماؤنٹ ہوں. یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیشیئر کی جاب کر رہا ہوں. آپ بے روزگاروں کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں ظاہر ہے, لیکن بے روزگاری جو ہے اس کے 2-3 پہلو ہیں. جو انڈر امپلائڈ ہیں وہ بھی ہیں نا, یعنی ان کا کیپیسٹی اور ہے, ایمبیشن اور ہے, اور کام کچھ اور کر رہے ہیں. تو آپ بے روزگار نہیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں شکر ادا کریں آج کل کے حالات میں آپ کے پاس یہ روزگار بھی ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ کو یہ آرگومنٹ جچتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہے ٹھیک, کیونکہ آج کل اس جاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کووڈ آیا, کووڈ میں میں تقریباً 7-8 مہینے بے روزگار رہا, اور گھر کی کفالت میں ہی کرتا ہوں کیونکہ گھر کا سب سے بڑا میں ہوں. چھوٹے بہن بھائیوں کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, پرائیویٹ اسکول اور کالجز میں پڑھا رہا ہوں, اور مطلب خود کو بھی ایک قسم سے سپورٹ کر رہا ہوں, گھر کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں. تو کووڈ میں گھر میں ہی رہا, نہ گورنمنٹ نے تو کسی کا نہیں پوچھنا اور نہ پوچھتے ہیں. تو میں 1 سال تقریباً 8 مہینے بڑا کام کرتے ہیں. وہ تو صرف مطلب نیوز تک کی بات ہے. اسکلس پروگرام جو ان کے ہیں وہاں پہ بھی میں نے کافی ڈیجیٹل وغیرہ میں جو ان کے پروگرامز ہیں اس میں نے اپلائی کیا, لیکن کہیں بھی مطلب میرا ایڈمیشن نہیں ہوا. تو میں فی الحال تو یہیں پہ بس ایک قسم کا خوار ہی ہو رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر میں گورنمنٹ جاب کے لیے میں نے کافی اپلائیز کی, تو گورنمنٹ جاب کا یہ ہے کہ اگر آپ کی سفارش نہیں ہے یا آپ کے پاس کم سے کم 7-8 لاکھ روپے نہیں ہے دینے کے لیے, تو آپ کی جاب نہیں ہو سکتی. نہیں, یہ مطلب یہ تو آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں, یا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. کوئی 5-6-8 لاکھ روپے کس کو دیتے ہوں گے تو آپ کو نوکری ملتی ہوگی؟ یہ ہر منسٹر کے اپنے ایجنٹس ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کو مطلب بتا دیتے ہیں. اگلے 2-3 سال آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ 2-3 سال میں کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا آپ جیسے لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو انڈر امپلائڈ ہیں, ان کے حالات کیسے آپ کو لگتے ہیں؟ میرے خیال سے بدتر سے بدتر ہو جائیں گے. جن کے ابھی بہتر ہیں ان کے اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے, بہتر نہیں ہوں گے. خیر سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کب سے چلا رہے ہیں کریم؟ سر مجھے سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا تقریباً. 1 سال. اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ سر میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے پاکستان اسٹڈی میں. پاکستان اسٹڈیز میں؟ جی. اور جینڈر اسٹڈی میں بھی میں نے کی ہوئی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو آپ نے مطلب ماسٹرز 2 ہیں آپ کے؟ جی میں ڈبل ماسٹر. ڈبل ماسٹرز؟ ہاں جی. تو الحمدللہ. ماشاء اللہ, بڑی زبردست بات ہے. تو یہ بتائیں کہ تو یہ پھر کریم کیوں چلا رہے ہیں؟ کوئی اس میں مایوب بات نہیں ہے, یہ ہم پہلے بتا دیں. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کیب چلانا کوئی مایوب بات نہیں ہے, لیکن ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اصل پوٹینشیل ہے اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں. جی سر. تو کیوں کریم کیوں کر رہے ہیں؟ سر ابھی دیکھیں میں نے ماسٹر کیا تھا, اس کے بعد میں نے فری تھا, کافی جگہوں پہ اپلائی کیا ہے, کہیں جاب کا سین آن نہیں ہوا میرا. ابھی اب آپ کے سامنے بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے
घर बैठ भी नहीं सकता ना। जो आपके साथ लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, आपने ज़रा डबल मास्टर्स किया है, जी जी और वो उनमें से जो लोग आपको मिलते हैं, जी, कभी जी, ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपकी कैब में वो कोई बंदा ऐसा बैठ जी, जाए, जी, कहे, सर। "ओए, तू क्या कर रहे हैं?" असल में सर जी वो भी बेचारे इसी ही सिचुएशन से, स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। उनको भी ये पता है कि खान साहब का दौर जा रहा है, तो क्या है क्या नहीं है सारों को पता है। जब आप किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होती कि आप मास्टर करके फिर जाके उबर और करीम चलाएंगे। जाहिर सी बात है आपके बड़े बड़े एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो वही गोल और एम लेके हम भी इस्लामाबाद आए थे। लेकिन अभी आप खुद देख लें, आपके सामने सर उबर करीम चला रहे हैं। सर आपको एक बड़ी मदद की मैं बात बताता हूँ कि जब से ये खान साहब आए ना बरसर इक़्तिदार, इससे पहले पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी थी, इतनी अच्छी उसकी क्रेडिबिलिटी थी कि लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे। लेकिन अभी वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे पेपर लीक होते हैं, पेपर बिकते हैं। इवन के सर कहीं प्राइवेट भी अप्लाई करें तो वो भी रेफरेंस मांगते हैं। मेरे पास कहाँ है रेफरेंस, किसको मैं कहूँ कि मेरी सिफारिश आके करो। डिग्रियाँ नहीं है आपका रेफरेंस? सर ये खान साहब का दौर चल रहा है यहाँ पे, आप मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं और आपको पता भी है यहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं होती। अच्छा, तो आप कितना इससे कमा लेते हैं? सर जी अच्छा, सारा ना बताना। देखिए मैं आपको क्या बताऊँ सर, मुझे हंसी आ रही है। अब आप देखें, पहले पेट्रोल कहाँ पे था, 145 पे था। खान साहब ने नमाज पढ़ी है, साथ ही उन्होंने छक्का लगा दिया, 160 पे हो गया पेट्रोल। अभी जाहिर सी बात है पहले मैं कमा लेता था 1000-1500 रुपया, अभी सर जी इनके भी पैसे, जो गाड़ी वाले हैं उनके भी पैसे मेरे पास हुए पड़े हैं, वो भी खैर मिल मिला के कहीं 1900 रुपये मैं एक दिन का कमा के लेके चला। तो यहाँ पे सारा रिहाइश का भी खर्चा जी होता बिल्कुल सर जी, जाहिर सी बात है रिहाइश का भी खर्चा और है। इस्लामाबाद कुछ ना करते वो भी बहुत महंगा कुछ शहर है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि इस्लामाबाद नहीं पूरा मुल्क ही ऐसे। तो वो घर वाले कहते नहीं है कि पुत्र वापस आ जाए तो चनियोटी चंगा कैसे? और सर जी उन्होंने किन्नी बार उनको बताया है, अभी कुछ ना कुछ करके आऊँगा, बस इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके यहाँ से जाएंगे। आप बड़े डिटर्मिन्ड है माशाल्लाह, जी, बहुत जी, अच्छी बात है। ज़रा यूथ के लोन्स भी हैं, वो भी हुकूमत ने इजरा किया है, उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी खतीर रकम जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, उससे नहीं इस्तेफादा किया? सर वो सिर्फ़ और सिर्फ टीवी की हद पे पब्लिसिटी की लिए, ये पब्लिसिटी स्टैंड है। मैंने खुद अप्लाई किया, रिजेक्ट किया, क्यों किया है? मेरे पास सिफारिश नहीं है, आप मेरी सिफारिश करो मुझे आज मिल जाएगा, नहीं मिलता बगैर सिफारिश के। कौन कहता मिलता? मेरे पास एविडेंस है, मैंने अप्लाई किया 10 लाख के लिए, नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दिया? मेरे अंदर क्या स्किल्स नहीं है? यार यूथ को कहाँ दे रहे हैं बताएं मुझे। जो जिसको MNA की सिफारिश है, जिसको MP की सिफारिश है, उसको मिल रहा है, हमें तो नहीं मिला। मेरे तो बहुत से जाने वाले लोग हैं, मैंने खुद अप्लाई करवाया, किसी को भी नहीं मिला। एवं सर जी बस ये सारा ढोंग है। कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? अल्लाह का करम है। तो तालीम क्या है आपकी? मेरी डबल मास्टर है सर, डबल मास्टर्स किस में? पॉलिटिकल साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ में सर। कहाँ से? मर्दान से सर। मर्दान से? जी सर। मर्दान यूनिवर्सिटी से आपने दोनों मास्टर्स? अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी। जी सर। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट पे सर। क्या करते हैं? मैनेजमेंट में सर। तो लेकिन आपने यही करना था, ये इस वक्त आप कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने तो यही नहीं करना था, ये तो मजबूरी की वजह से किया सर। तो क्या करना था आपने? मैंने तो सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब करनी थी सर। तो आप CSS का इम्तिहान दे रहे थे, आपने डबल मास्टर्स किया, वो नहीं दिया? वो नहीं दिया सर। और या सूबाई सर्विस का देते थे, वो भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया सर। कहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते थे गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो सर, मैंने अप्लाई करना है उसमें। तो अप्लाई तो किया होगा ना फिर आपने? बहुत ज़्यादा सर। कितनी की एप्लीकेशन दे चुके हैं? तकरीबन कोई 250 से ऊपर एप्लीकेशन। 250 एप्लीकेशन? और सर। कितने टाइम में? तकरीबन कोई 10 साल से। 10 साल से आपने 250 एप्लीकेशन? जी सर। और कहीं से कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं है, कोई मुस्बत जवाब कोई नहीं? मुझसे जवाब नहीं। इसकी क्या वजह है कि आपके पास डबल मास्टर्स भी है, आप उस सूबे से हैं जिसमें मौजूदा हुकूमत सियासी तौर पर तगड़ी भी है? ये नहीं कि इससे आपको फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन होता है ना, एक माहौल बना हुआ होता है। जी सर। और इसके बावजूद क्यों नहीं आपको मिल रही? कि आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं जिनको जॉब्स मिल रही हैं? सर क्वालिफाइड लोग भी है और नहीं भी है, जो कम क्वालिफाइड है उनको जॉब मिलती है, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें सर। तो कम क्वालिफाइड है, आपको लगता है आप ओवर क्वालिफाइड है? नहीं, ओवर क्वालिफाइड नहीं है सर, पर यह है कि आप खुद अंदाज़ा लगाए कि वहाँ पे जो है ना अप्रोच। तो आपके पास अप्रोच नहीं है? मेरा approach अप्रोच नहीं से मुराद क्या है कि सियासी तौर पर होनी चाहिए या
पैसे लगने चाहिए क्या? दोनों सर। दोनों? आपकी तालीम क्या है? मेरी MSc मैथ्स कम्युनिकेशन नंबल यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेड। और आप? BS पाकिस्तान स्टडीज़। तो आपके पास अभी क्या मसला, नौकरी नहीं है? नहीं, नौकरी नहीं है सर, बिल्कुल भी। तलाश के बावजूद नहीं है या? तलाश की है, अप्लाई भी किया है, उसके बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो अभी तक वेटिंग में। तो वो कहेंगे कि अभी कितना अर्सा हो गया आपको ये डिग्रीज किए हुए? कोई साल हो गया है, 1.5 साल। मुझे 1.5 साल हो गया सर जी। तो वो कहेंगे कि इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं है। अभी हमने एक से बात की, वो कह रहा है मैं 10 साल से अप्लाई कर सका हूँ, मैं 250 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, हुआ उसका भी कुछ नहीं है। लेकिन आपने तो अभी भी शुरू किया। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सीनियर्स हैं, उनको तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं, तो अभी तक उनको कोई नौकरी नहीं मिली। हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में 99% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी मैं एक दोस्त को लेकर आ रहा था, मगर वो नहीं आया मेरे साथ, कहीं जा रहा था, तो उसको तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं किया। हालांकि माशाल्लाह बहुत लायक भी है वो। हमने भी बहुत सी तो- जगह पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कोई एज सच कोई रिस्पांस नहीं आया। नहीं, नौकरियाँ फिर आपको किस किस्म की चाहिए, ज़रा इसकी भी वजाहत हो जाए ना। आप प्राइवेट बिजनेस करना चाह रहे हैं, प्राइवेट नौकरी करना चाह रहे हैं, हुकूमत की नौकरी करना चाह रहे हैं? उसमें आपको पेज अच्छी नहीं मिलती। जो बेसिकली मेरा फ्रेंड है, उसने MPhil किया हुआ है, अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो जॉब कर 18,000 करते, जबकि वहाँ पे जो मजदूर काम करें उनकी 35 से 40 हज़ार एक महीने की तनख्वाह है। तो आप बताएं, जिस फ्लैट में वो इधर रह रहे हैं उसका रेंट 18,000 है, तो वो क्या करें? MPhil करने के बाद भी हम घर वालों को देखें कि वो हमें महीने का खर्चा भेजें। इतनी दूर से हमें उन्होंने वो पढ़ने के लिए opportunities भेजा। नहीं है हमें इस तरह की। 2018 से लेके 2022 है, इन 4 सालों में आपको क्या पाकिस्तान में तब्दील होता हुआ नजर है जवानों के ज़ाविये से, अगर आप देखें? सर, हमने तो मोस्टली अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को ख़राब होता ही देखा है, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं बिल्कुल। कोई नशों पे लग जाता है, कोई मुख्तलिफ डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह, इस तरह से। कोई किसी के घर के मामलात ख़राब होते हैं, तो वो अब मैंने आपको लिटरली बताऊँ, हम उस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे एजुकेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे वालिदैन ने आगे बढ़ के हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा, और यकीन करें वहाँ पे एक तो एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ तक बिक जाती हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। एट द एंड उनको मिलता क्या है? वो बच्चे जो पढ़ जाते हैं वो अपने वालिदैन के लिए क्या करते हैं? वो अपने आप ख़ुद को नहीं पाल सकते, तो घर वालों को क्या? थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा में किस जगह से? सरगोदा में 25 चौक बागटा वाला अच्छा, गांव से। तो क्या तालीम क्या है आपकी? मेरा मास्टर्स किस में? मैथ्स कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में। और सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया? नहीं, इधर यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और कब आपने कंप्लीट किया है? 2020 में। और अभी 2022 का आगाज़ है, तो जी। 1 साल से क्या कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से? 2 साल इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने पब्लिक न्यूज़ में, और इंटर्नशिप करने के बाद जगह जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन मीडिया में कहीं भी जॉब नहीं मिल सकी। लाहौर गया, मैं रोज़ आता हूँ इस्लामाबाद, मतलब कि लाइक 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद CVs लेके। आपकी क्या तवक्को थी जब आप डिग्री कर रहे थे कि जब डिग्री कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा? तब यही था कि मतलब कि इट विल बी टू ईजी, कि मुझे जॉब मिल जाएगी। इमरान खान साहब को हम ही वोट दे के लाने वाले हैं, मेरा पहला वोट था और मैंने इनको दिया, क्योंकि इन्होंने नया पाकिस्तान का वादा किया, तो उस पर सिर्फ यूथ ने ही यकीन किया था। बड़े लोग तो इनको अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि महंगाई इतनी है, और हम ही इनके वाहिद सपोर्टर। अगर ये यूथ को डिसअपॉइंट कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा कभी भी आ सकेंगे। तो आपने खान साहब को वोट दिया? खान साहब को वोट दिया, और जोश व खरोश से? जोश व खरोश से दिया है, पहला वोट था, बड़े शौक से दिया, घर वालों सबसे मुखालफत करके वोट दिया इनको। और अब ये हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, लेकिन इनका सारा फोकस सिर्फ रियल एस्टेट की तरफ है। तो वहाँ पे नौजवान जाकर क्या दिहाड़ियाँ करें? आप हमें कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? हमारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं हमें लग रहा, अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक इन्होंने सेहत कार्ड वाला जो सा एक इनिशिएटिव लिया है, उससे हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन उसके अलावा यूथ के लिए क्या किया? मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया, उसमें तो उन्होंने फिर बात की है कि जो करप्ट लोग हैं उनकी वजह से सारा कुछ होता है, और मुस्तकबिल की उम्मीद भी दिलवाई है। क्या कहते हैं हमारे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो डिफरेंट है। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। अगले 2 साल में आपको या 3 साल में यूथ के ज़ाविये से, जिसके पास डिग्री भी है, जिसका एम्बिशन भी है, जब आप अपना 3 साल प्लान करते हो तो कैसा लगता है आपको 3 साल? मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि बाहर स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया जाए, ठीक। इस मुल्क को छोड़ा जाए, यहाँ पे फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, तो देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा।